Formed the deity. But same mood and same attachment will be manifest in front of you. When you come in the stage of Bhagavad. Now you are on the process how to see. And this will be arranged by Paramatma, Super Soul. Chaitya Guru, she arranged. And when you connect it, then you can see. When you disconnect it, you cannot see. So at the moment, it's like we are disconnected. Electricity is coming. When the electricity is coming, the bulb is giving the light. When the electricity is disconnected, the bulb is not giving light. In the same way, when you connect it, that time you can see. That is Sanskrit word that is called ठीक है that is called Guru's transcendental thing. Same mood and same everything will manifest in front of you. That is called Chaitya Guru Bakusha. Chaitya Guru means super soul. Soul within your heart. That super soul, that is called Baladev Prabhu. Manifest in the super soul. And Chaitya Guru will arrange it. And so for this regard here, that is called Dibbo Gyan Dila Jai Janme Prabhu. That Janma life after birth, life. This is the connectivity. Same Guru means the same mood of this. You cannot see the physical things. Now we are looking at the physical. You understand? You are physical. This is our white color. This is a brown color. You are looking this is what they call material. So at the same time can manifest either yourself or many other manifestations. Even like this same life I'm living, I can have contact with Guru, but in different manifestations simultaneously, or just... No, that Guru will be, that Guru means, actually this is called the original Guru, that is called Baladev Prabhu. Akhanda Gurutta Baladev Prabhu. In front of you, that Guru, that is called the manifestation of Baladev Prabhu. That is called Baladev Prabhu's Prakash Vigraha, that is called Guru. What is the meaning of Guru? Guru means who is the manifestation of Baladev Prabhu. Baladev Prabhu Prakash Vigraha. What you do? Bhajan and sadhana and chanting Guru Mantra, that Guru will manifest of you. And that will come when you come in the stage of Asakti and Bhavdasa. Between Asakti and Bhavdasa. When you come in the Asakti and Bhavdasa, then you realize. Now you cannot realize. And Krishna also came in front of Duryodhana, but Duryodhana cannot realize he is Bhagavan. Duryodhana, he cannot realize because his heart is completely covered with the Maya, Ahankar, everything. But performing bhajan and sadhana, when the Maya will be removed, then you can see. Gradually. This is the process also. Will that be stage when you get your Ekadasi Bhav? Like, no, Bhav stage. That's Bhav stage, right? No, that is your Sarup Siddhi. That is Sarup Siddhi, they said it's Bhav stage. Bhav stage That- you get to. No, I'm asking you, I don't know. Bhav stage, after Bhav stage जो है, आसक्ति, then roti, then Bhav. Then after Bhav stage, there is the Ekadas mode. Yeah, mood means Bhav, not the Bhav stage. Ekadas 10. Ekadas 11th mood or Panchadasha. There is this kind. Bhav doesn't there is not the Bhav. Bhav is another thing. Bhav is the before that there is coming. Khantra Pratakartam Vritti Manas Sunnata Asavanda Samitkanta Namagani Sadaviti Asida Gunani Purita Vajita. This is actually called the, not actual Bhav, but it is called the sprout of Bhav. Bhavang Kurejam. Bhavang Ankura, the sprout of Bhav.
Like in Jevadalu. एक आप प्रायः जो बोल रहे हैं आप सुनो, और भाव अंकुर एक नहीं। जैसे Bird. It's like a bird. जैसे एक बीज है, बीज से पहले क्या होता है? पहले अंकुर आता है, बीज के बाद अंकुर आता है। अंकुर समझते हो? है ना? एक बीज को अपने पानी में डाल दिया है तो वो क्या हो गया? अंकुर आता है। देखिए स्प्राउट का आता है। स्प्राउट के बाद क्या आता है? फिर जो है वो आ जाता है, दो लीव्स निकलता है, 2 लीव्स लेकर के वो पौधा होता है। तो कहाँ देखो, बीज से आ गया अंकुर, अंकुर से देखो पौधा, तो फिर पौधा बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष के रूप धारण करता है। तो क्या फर्क जो हो जाता है? So ये stages. ये जो कथा जो कर रहा है, ये कथा है भावांकुरे जने। ये जो खांतिर प्रकार व्यक्ति मानुष है, ये एक्चुअल कहा जाता है भाव के अंकुर का है। तो भाव दशा में परिपक्व, यही भाव जो उनको परिपक्व होकर के मैच्योर होकर के तो धीरे धीरे वो प्रेम दशा में जा रहे। प्रेम के जो और भी स्टेज बता दिया है, तब अनुभव होता है। लोग भी कहते हैं आसक्ति दशा में जो होता है वो आभास रूप में आ जाता है। आवाज नहीं, वो आसक्ति दशा में आभास हो जाता है। पहले होता है कि आत्मदर्शन होता है, तब तो भगवान के दर्शन होगा। सूर्य प्रकाश होने से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आपके आंख अंधा हो, आपको सूर्य दिखाई पड़ेगा। 2 वस्तु होने चाहिए, आंख में रश्मि होनी चाहिए और सूर्य प्रकाश होना चाहिए। आंख में आपके रश्मि है किंतु सूर्य प्रकाश नहीं हो रहा, तो आपको सूर्य नहीं दिखेगा। तो दोनों वस्तु होनी चाहिए। सूर्य प्रकाश, सूर्य उदित हो गया और साथ ही साथ आपकी you understand? When the sun's coming, we can see, but the sun goes down and we don't see it. Doesn't mean it doesn't exist. 2 things need simultaneously together. Simultaneously need 2 things. Sun rises, and when sun rises, rays of sun coming, and simultaneously we have need the eyesight. क्या बोलते हैं? Eyesight नहीं, eyesight नहीं है. You have no eyesight. Sun rises, you cannot see. And if you have eyesight, but sun not rises, you cannot see. So need both. That means what is example? Need to be. First you realize yourself. Who are you? For this, that is called that you raise your soul. आत्मा के जागृत करो. Eyesight है। Awaken yourself. For the जीव जागो. We are saying जीव जागो. Awaken. Self realize. जब तक आत्मानुभूति नहीं हो रहा, self realize, and simultaneously, and Lord will manifest in heart. Both need. If भगवान आपके निकट प्रकट हो रहा है, हो जाए, और साथ ही साथ आपकी भी आत्मा के उन्मोचन होना चाहिए, माने आत्मा की प्रकाश होनी चाहिए, भाव प्रकाश होनी चाहिए। ये समझना चाहिए। 2 वस्तु नहीं हो तो नहीं होगा। इसलिए नायकत्व प्रकरण न बहुना सुते न चौमी विषय गुणते तीनों को दृश्य स्वात्मा विवृत भगवान आपके निकट प्रकट हो गए, किंतु आपके आत्मा क्या बोले माया के द्वारा कवर हो, दिखाई नहीं पड़ेगा। एट ए टाइम 2 थिंग्स नहीं। भगवत प्रकट, भगवान तो सबसे प्रकाशमान है। लॉर्ड ऑलवेज मैनिफेस्ट, ही इज नॉट अनमैनिफेस्ट, ऑलवेज मैनिफेस्ट। सो फॉर द बट यू हैव टू मैनिफेस्ट योरसेल्फ। अपने को जागृति करो, जागृति करो। यू हैव टू रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन द बेस्ट वे। अपने को रियलाइजेशन करो। तो जैसे बीज करने के लिए हमें पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये जो है देवी, वो तो साधन बता रहे हैं, किंतु दोनों वस्तु आपके भगवान तो हमारे पास है। भगवान सर्वत्र ही है, भगवान सर्वत्र ही है। तो भगवान के ऊपर हम दोष नहीं दे, भगवान किसी माया के द्वारा कवर नहीं हो रहा। हम जो आत्मा जो है, हम अभी माया के द्वारा कवर हो रहे, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाए। सूर्य बादल के ढका नहीं है,
हमारे आंख जो है वो बादल को ढक दे, हम करे बादल, हम सूर्य के ढक, हम अपोजिट शब्द बोलते जा रहे हैं। क्या बोला? बादल ने सूर्य को ढका, बादल 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 ने क्या की? सूर्य को ढका। सूर्य को ढका, किंतु ये शब्द ठीक नहीं है। हमारे आंखों के ऊपर जो है बादल ढक दिया, हम सूर्य के देखेंगे, क्योंकि सूर्य विशाल है, और सूर्य दूर है। सूर्य विशाल है, इसलिए बादल वास्तव में इसको ढक नहीं सकते। किंतु हम जो व्यवहार जो शब्द जो व्यवहार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सूर्य बादल के द्वारा कवर हो गया, सन कवर्ड विद द क्लाउड, किंतु ये शब्द ठीक नहीं है। क्लाउड वास्तव में हमारे आंखों ऊपर गिरे हैं, किंतु हम जो प्राकृतिक लोगों की जो समझा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अभी बादल सूर्य की तरह ढका हुआ है, कहते हैं कि, किंतु ये जो शब्द जो हम जो बोल रहे हैं, ये सब गलत शब्द है, हमारे आंखों के ऊपर है, किंतु वास्तव रूप में क्या है? सूर्य बृहद वस्तु है, तो क्षुद्र वस्तु बृहद वस्तु के ढक नहीं सकते है? जो हम लोग जो ईश्वर क्या कहते थे, क्या बोले, स्पिरिचुअल वर्ड्स दिस, हम जो शब्द कह रहे हैं, ये हम लौकिक शब्द आदि करके व्यवहार करते जा रहे हैं कि बादल ढका हुआ है, सूर्य बादल की तरह ढका हुआ है, बादल के नहीं, बादल हमारे आंखों में हम देख नहीं पाए। आज सूर्य तो समान है, वो है, उसे बादल कैसे ढक देंगे? बृहद वस्तु क्षुद्र वस्तु के, ये क्षुद्र वस्तु बृहद वस्तु के ढक नहीं सकते, हमारे आंखों पर हम देख नहीं पाए। उसी प्रकार भगवान की दर्शन के लिए पहले अपने को है सेल्फ रियलाइजेशन, अपना जो हृदय में जो मैल पड़ा हुआ है, जो दर्पण में जो मैल पड़ा हुआ है, वो मैल के क्या करो? तो रूपी दर्पण को पहले साफ करो, काम क्रोध लोभ मोह मौज मास्टर जैसे हमारे हृदय को ढक करके रखना है, वो मैल को हटाना। इसलिए महाप्रभु क्या बोले? चेतो दर्पणो मार्जन, चित्त रूपी दर्पण है, चित्त रूपी दर्पण के जो है उसको साफ करो, यही तो कहते हैं। गुरु तत्व गुरु के हम तब दर्शन कर पाएंगे जब हमारे हृदय निर्मल होगा, तब तो दर्शन करेंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कैसे देखते हैं? वो अपने भाव के अनुसार देखते हैं, जो जिस प्रकार की होता है वो उसी प्रकार भाव लेकर के देख रहे है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कम का पसंती कमिनमय जगत। एक कम का व्यक्ति जो है वो दूसरे को क्या देखते हैं? ये सब हम जैसे ऐसे ही है। एक चोर बदमाश जो है वो सबको क्या देखेंगे? वो समझेगा हमारी भांति सब है हमारे भांति सब है, कहते ना, अरे सब एक ही है। उसके पता ही नहीं है, वो सोच रहा है सब एक ही है। सब एक कैसे हो गए? सब एक नहीं है। तो वो अपने विचार लेकर के देखे, अपने एवरीबॉडी हैव टू टेक इन दर्शन अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ विजन पर्सपेक्टिव। सब व्यक्ति अपने अपने दर्शन करते हैं, किंतु जब यहाँ पर जब आप तटस्थ होकर के देखना पड़ता है, न्यूट्रल देखो। जब न्यूट्रल के देखोगे तब विचार करोगे। इसलिए कहता तटस्थ ही है विचार अच्छे तारतम्य। क्या बोला? तटस्थ हुआ विचारिले अच्छे तारतम्य। तारतम्य हुए नहीं, न्यूट्रली यू सी, देन यू कैन सी व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। व्हाट इज गुड एंड एक कनिष्ठ अधिकारी देख रहे और एक उत्तम अधिकारी देख रहे, दोनों के देखना एक जैसे लगता है। कनिष्ठ अधिकारी देख रहे क्या? मध्यम उत्तम भागवत क्या देख रहे हैं? उत्तम भागवत देख रहे सब भगवान के भजन कर है।
और कनिष्ठ अधिकारी क्या देख रहे हैं? बोले किसी को भजन नहीं कर रहे हो। कोई नहीं कर, मैं भी कर रहा हूँ तो कोई भी नहीं कर। मैं नहीं कर तो कोई नहीं कर, सब चोर है। मध्यम जो है वो विचार कर रहे हैं। मध्यम में विचार शक्ति है। डिस्क्रिमिनेशन मध्यम अधिकारी में वो डिस्क्रिमिनेशन करती है। इसके तरफ से हाँ, वो भी डिस्क्रिमिनेशन कैसे करें? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, शास्त्र। वो भी शास्त्र के विचार करके वो डिस्क्रिमिनेशन करें। ये मध्यम अधिकारी में विजय। उत्तम अधिकार दे शब्द भगवान के भजन करें। सर्वभूतेषु जपस्येत भगवत भाव आत्मन। भगवती भागवत में सब भागवत उत्तम। सर्वभूतेषु जपस्येत, दिखा के सब लोग भगवान के भजन करें। नारद ऋषि क्या देखेंगे? सब भगवान के भजन करें। अब कैसे भजन करें? भजन माने सेवा। कैसे सेवा करें? कोई अन्याय रूप में, कोई प्रति क्या बोले, और अन्य रूप में अथवा व्यतिरेक रूप में, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप में है। कंस, नारद ऋषि क्या दे रहे? कंस भी भगवान की सेवा कर रहे। वो कह रहे हैं ये नारद ऋषि सोच रहा है ये कंस यदि नहीं होते हैं तो भगवान की लीला नहीं होता। इसलिए कंस नारद ऋषि वृंदावन में आकर के कृष्ण के कह रहे ये कृष्ण तुम कब कंस के मारोगे? क्या यही ब्रजवासी आपके भक्त है और मथुरावासी भक्त नहीं? कंस मथुरावासी को कितने कष्ट दे रहे, तुम कब जाओगे इसको मारो? तुम्हारी ये लीला के बाद ये लीला करना है। और इधर कंस अब नारद ऋषि इसमें आ रहे हैं। पहले कंस के पास आया, कह रहे हैं देखो अरे तुम्हारे ये शत्रु कृष्ण के तुम कब मारोगे? एक काम करो, कंस के जो है एक कंस करिए ना, केवल कृष्ण के मथुरा लेकर जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या बोले? नारद ऋषि उत्तम भागवत, इसे नारद ऋषि यही लीला कराते हैं। वो जानते हैं जो कंस भी भगवान की सेवा कर, कैसे सेवा कर रहे हैं? व्यतिरेक रूप। और ब्रजवासी कृष्ण के कैसे सेवा करते हैं? अन्य रूप में। एक अनुकूल रूप में सेवा करते हैं, कोई प्रतिकूल रूप में सेवा करते हैं। कोई अनुकूल रूप में सेवा कर रहे हैं, कोई प्रतिकूल में सेवा है। ये कौन देख रहे हैं? ये उत्तम भागवत देख रहे हैं। हम नहीं कहेंगे मध्यम अधिकारी में प्रतिकूल रूप में सेवा नहीं होगा। क्या बोला? मध्यम अधिकारी कहेंगे प्रतिकूल में, प्रतिकूल को त्याग दो, किंतु उत्तम अधिकारी को देख रहे प्रतिकूल में सेवा है। समझ में आए? क्या समझ? प्रतिकूल में उत्तम भागवत देखते सभी सेवा करते हैं, कोई व्यतिरेक रूप में, कोई अनुकूल रूप में। किंतु मध्यम अधिकारी क्या बोले? अनुकूल लेने कृष्ण अनुशीलन। प्रतिकूल में सेवा कैसे होगा? मध्यम अधिकारी प्रतिकूल में सेवा नहीं होगा। सानिउर मुस्तिक कृष्ण की सेवा करे कि नहीं कर रहे? सानिउर मुस्तिक कृष्ण की सेवा करे कि नहीं कर रहे? है ये नारद ऋषि कहेंगे चाणूर मुस्तिक है, किंतु ब्रजवासी कहेंगे, मध्यम अधिकारी कहेंगे नहीं। इसलिए प्रतिकूल को है। इसलिए कहता है एक व्यक्ति दोष और एक अव्यक्ति दोष। माँ गोपाल को जो है स्तनपान करना बंद कर दिया तो गोपाल अप्रसन्न हो गया है। तो कृष्ण प्रसन्न नहीं है माँ जसोदा के ऊपर, तो ये भक्ति कैसी हो जाएगी? भक्ति के जो कहा गया अनुकूलन कृष्णानुकूलन, भक्ति की लक्षण क्या है? कृष्ण की अनुकूलमय सेवा होनी चाहिए है। तो कृष्ण प्रसन्न हो, अनुकूल के द्वारा भगवान प्रसन्न होता है। नहीं
है तो माँ यशोदा गोपाल के स्तनपान कर बंद कर दिया, तो गोपाल क्या हो गया? रुष्ट हो गया। तो ये सेवा कैसे बढ़ते थे? तो उसके लिए कहा रहे हैं ये हाँ यशोदा गोपाल के जो स्तनपान करना बंद कर दिया, कारण क्या है? न ये दूध के बचाना है, जो दूध क्या बोले उफन रहा था है? उसके बचाना है। क्यों बचाना है? माँ यशोदा विचार कर रहे हैं ये गोपाल अभी तो हमारे स्तनपान कर रहे हैं, किंतु उसके कुछ समय के बाद वो कहेंगे मैया मुझे मक्खन चाहिए। माँ के स्तन से माखन नहीं होगा, स्तन के दूध से माखन नहीं होगा। माखन का कहाँ से होगा? वो गाय के दूध से जो उफन रहे जो गिर। तो कृष्ण सेवा के वस्तु हमके रक्षा करना है। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के वस्तु के हमें रक्षा करना पड़ेगा। यदि दूध के यदि जो दूध उफन रहे माने गिर रहा है उसके यदि माँ यशोदा नहीं रक्षा करें तो आगे जाकर के गोपाल की सेवा कैसे हो? माँ यशोदा के जो वात्सल्य भाव के जो है ये भी तो इसलिए कहा जाता है क्या ऊपर से दिखा रहे प्रतिकूल दिखा रहे। माँ यशोदा गोपाल के स्तनपान करना बंद कर देगी, ऊपर से दिखा जाए क्या प्रतिकूल दिखा रहे, किंतु अनुकूल हो रहा है। और चाणूर मुष्टिक कृष्ण के जो है क्या कृष्ण के साथ वीर रस आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न हो रहे। यहाँ माँ यशोदा के ऊपर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ और चाणूर मुष्टिक के साथ प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत अब कृष्ण बहुत आनंद ले रहे हैं। चाणूर मुष्टिक उसके साथ लड़ रहे हैं और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण के मुख बहुत आनंद आ रहे हैं। इधर तो कृष्ण रो रहे हैं और उधर कृष्ण के मुख कैसे हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं, किंतु उसके भक्ति नहीं कर रहे, वो प्रतिकूलता आ रहा है। क्यों? न चाणूर मुष्टि के जो कार्य जो है वो कृष्ण के आनंद देने के लिए नहीं था, वो तो चाणूर मुष्टि के काम क्या है? कृष्ण के मारने के लिए। और कृष्ण जो प्रसन्न हो रहा है किंतु ये भक्ति नहीं हो रहा है। हमें विचार करना है कि जब हम विचार करते हैं तो भक्त की अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज कॉल्ड इंटेंशन ऑफ द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, भक्त की दृष्टिकोण से हमें विचार करना है, भगवान से नहीं। भगवान प्रसन्न हो नहीं हो तो हमारे क्या लेना देना है? भक्त के दृष्टिकोण से हमें लेना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होते नहीं, भगवान में क्या आता जाता है? वो तो आत्माराम तो काम है, वो तो क्या बोले सर्व पूर्ण वस्तु है। भगवान प्रसन्न हो अथवा नहीं प्रसन्न हो भक्त वो हमारी दृष्टि नहीं है। समझ में आता है? भक्त की दृष्टिकोण से हमें विचार करना, आज ये देखना पड़ेगा। कृष्ण माँ यशोदा के ऊपर कृष्ण क्या हो गया? गुस्सा कर दिया, तो कृष्ण गुस्सा होते क्या हो गया? वो भक्ति नहीं हो रही। कृष्ण प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न है वो हमारे विचार के विषय नहीं है। प्रसन्नता किस में है देखना पड़ेगा। ये वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड अरे इस दृष्टिकोण से देखना, भक्तों के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। वो भक्त के दृष्टिकोण से विचार होता है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ है भक्त के, वो देखना पड़ेगा। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता वो देखना। एंगल ऑफ विजन अब वो देखना पड़ेगा कौन दृष्टिकोण से हम विचार करें। भगवान प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न हो नहीं प्रसन्न उससे हमें क्या लेना देना है? और भगवान के प्रसन्न अप्रसन्न होते क्या? भगवान तो परिपूर्ण वस्तु है। क्या भगवान मतलब परिपूर्ण वस्तु, पूर्ण मतलब पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण वस्तु है, ही इज कंप्लीट।
है। तो भगवान में कोई अपूर्ण वस्तु नहीं है। तो भगवान में जो अपूर्ण वस्तु नहीं थे उसमें अप्रसन्नता कोई बात ही नहीं है। इसको थोड़ा एक टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़ा समझने के प्रयास करना पड़ेगा है। भगवान क्या वस्तु है? पूर्ण वस्तु है। तो पूर्ण वस्तु में कोई अपूर्णता आ नहीं सकते हैं। भगवान सदा सर्वदा प्रेममय वस्तु है। प्रेममय वस्तु में उसमें अपूर्णता नहीं आ सकता है। प्रेम जहाँ पर है, प्रेम प्रति भगवान में, तो उसमें दुख क्या क्या वो देखना हमारा नहीं है। भक्तों के दृष्टिकोण से एंगल ऑफ द विजन ऑफ द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ये आपका दृष्टिकोण है। एंगल ऑफ द विजन ऑफ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, वो विषय क्यों? भगवान जो होता है वो विषय तत्व है और भक्त जो होता है आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व के दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है। आश्रय तत्व है शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। आश्रय तत्व भी परिपूर्ण है। क्या मध्यम अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, वो भी परिपूर्ण। आश्रय तत्व तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक सेव्य वस्तु और सेवक, कृष्ण है क्या? सेव्य वस्तु विषय तत्व, और माँ जसोदा क्या तत्व है? सेवक तत्व, आश्रय तत्व। कृष्ण छोड़ करके सभी क्या है? आश्रय तत्व में। केवल प्रेम की विपरीत में आकर के राधा कृष्ण दोनों ही जो है वो हो जाता है विषय तत्व हो जाता है। वो भी सबसे नहीं है। तो किंतु साधारण विचार में कृष्ण सदा सर्वदा होता है विषय तत्व, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। कृष्ण के कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव है। और श्रीमती राधिका क्या है? शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। सब अकेला पुरुष कृष्ण और सभृत्य जारे जोइछे नाचाए तोइछे कोइछे नित्य। कृष्ण परिपूर्ण होते, परिपूर्ण वस्तु है। और परिपूर्ण जो परिपूर्ण वस्तु है उसके कोई अभाव नहीं है। परिपूर्ण मतलब क्या है? कंप्लीटली कंप्लीट वस्तु है। तो भक्त तो उसके प्रकार सेवा करते हैं, तो भगवान उस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान और भक्त में इतना ही है। भगवान परिपूर्ण वस्तु है, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्त जब भगवान को देते हैं तो भक्त उसके भाव के अनुसार वो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ सर, जैसे एक धनी व्यक्ति, हजारों उसके लाखों करोड़ उसके रुपया, चलो वो उनके कोई धन का अभाव नहीं, किंतु कोई उनके व्यक्ति यदि का अच्छा इसको मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, तो वो आनंद से ग्रहण करे। उसके जरूरत नहीं है 1 रुपये को, कोई वैल्यू नहीं उसके पास। किंतु जब कोई प्रीति के साथ दे रहे हैं वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। वो ही इसी प्रकार भगवान अनंत प्रेम के वो भी वस्तु है। भगवान की जरूरत नहीं है, किंतु भक्त जब देते हैं तो भगवान उसके ग्रहण करते हैं। यही तो दिखाते हैं। इतना समझना इतना सहज नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, 1000 बार सुनते सुनते कहीं आएगा। इतना समझ नहीं, आज सोच रहा समझ गया, तो फिर मैं घुमा कर बोलूँगा एक बुत्तर देवी पाई। पर ये भी समझना है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको बोलता है, ये भी गुरु की कृपा है ना। वो कृपा करते हैं हमको, तो पूरा ये सेल्फ रियलाइजेशन आते हैं। और अरे गुरु केवल कृपा तो हो रहा है, किसको ग्रहण करना कितना है। तो ये कैसे ग्रहण कर सकते हैं? और साधन, यही तो लगे साधन करो। तुम साधन करो, भगवत नाम करो, सेवा करो। सेवा करते करते उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षित होगी। कृपा माने करो, और कृपा केवल जब तक नहीं करोगे प्राप्ति नहीं होगा। पर कोई बार हम लोग सेवा करते हैं, पर हम भी लोग के गुरुदेव हम लोग अच्छी की सेवा करते हैं, सही करते हैं कि गुरुदेव के आप तो यही पद है, यही शब्द आपके आगे अहंकार शब्द आ गया। मैं सेवा करूँ ये भावना के त्याग दे दो। मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, बोले गुरुदेव
दिन I got that. I जिस दिन ये समझ में आ जाएगा मैं नहीं करूँ, इसमें एक होता है, एक है क्या बोले पॉजिटिव भाव आ जाता है। जब ये सोचोगे मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये अहंकार हो जाएगा। गुरुदेव कृपा करके मुझे करा रहे हैं, मैं कर पा रही हूँ। तो ये कृपा है। ये भाव जब आ जाता है, तो ये भी हम करने वाला नहीं है। सुन अच्छी तरह से, बक बक करते रहते। एक बच्चा चल नहीं पाते हैं, उसको कौन चला रहे हैं? माँ हाथ पकड़ के चला रहे हैं। ये क्या है? इसको कहा जाता है पॉजिटिव भाव का। पॉजिटिव भाव होता है ये, जैसे हम चंद्र हम देख रहे हूँ, देखना टू सी आ टू शो, क्या बोला? देखना और दिखाना, दिखाना है। हम भगवान के देख नहीं पाएंगे। जब कोई मुझे देखा है, देखो एक होता है टू सी और एक टू शो है। इंग्लिश में जो हो रहा है इसको जो है हम भगवान के देख नहीं पाएंगे, क्यों? हमारे जो है जड़ इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रिय के द्वारा चित्त वस्तु को हम क्या देख पाएंगे? जब भगवान कृपा करके अपने दिखाएंगे, ये कहते शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमगल। आप दृष्टि आप अपने ये दीजिए, देखने की शक्ति हमें प्रदान करे। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगला। हमें जो शक्ति प्रदान करे तो हम देख पाएंगे। एक देखना और एक दिखाना। हाँ समझे, ये बता दिया। हम देख रहे हैं, हम क्या देखें? जड़ वस्तु के जड़ वस्तु देख पाएंगे। भगवान चिद वस्तु है, चिद वस्तु के लिए कौन? स्वयं भगवान जब कृपा करके दिखाएंगे, बात दर्शन। हम सेवा कर रहे हैं, ये भावना हो जाए तो भक्ति नहीं होता। गुरु कृपा करके, भगवान कृपा करके हमारी सेवा ले रहे बा, स्वीकार कर रहे हैं, बस सेवा करा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, यदि हो जाए वो भक्ति नहीं होगा। यही तो होता है। हमको सावधान रहना है कि हम अपने सब का उपयोग करते हैं। To be sure. Share this